Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll be having our 20th lecture, and that is also about the corporate takeovers governance mechanism. But before we start our today's lecture, let's have a quick review about our last lecture. In last lecture, we briefly overview about the merger and acquisition. That there are basically some reasons that why the companies go for the merger and acquisition, in which we have the first one is strategic reason, that is to reduce cost and to get new businesses. Second one is synergistic reason, that is the companies they want to make some combined effort, so that's why they go for the merger and acquisition. Aspect is diversification, reduce the risk by making investment in a different location. Through diversification, the companies they want to reduce their risk of investment, because once you made investment in different fields in different locations, so obviously you are basically reducing the risk of return, the risk of loss. Then we discussed are corporate takeovers good for shareholders. In this we discussed the acquirer firm's shareholders perspective and the acquirees firm shareholders perspective. Acquirer firm shareholder perspective is that they are basically looking for the resources of the acquiring firm. Acquiring firm के resources आएंगे, so that's how they can increase somehow the strength of the acquirer firm. Acquiring firm shareholders perspective is basically their aim is that although company is declining, so this sort of merger or acquisition can somehow add some value to their shares. The target firm, here we discussed about the increase in share price. This obviously the benefit goes to the target firm shareholders, that they can face some increase in their share price. Then we discuss, is it appropriate to acquire successful or unsuccessful firm? In successful firm, obviously a layman can say that you should always go for the successful firm acquisition. But the thing is that there are many factors involved when you go for the acquisition of successful firm, and the main factor is the cost factor. Obviously you have to pay more to buy or to acquire a successful firm. On the other side, as far as the unsuccessful firms are concerned, so you have to pay less to acquire the unsuccessful firm. So once no one can guarantee कि अगर आप successful firm को acquire करेंगे, so you will get benefit. अगर आप unsuccessful firm को acquire करते हैं, so you will not get any sort of benefit. So that depends कि आप how you can predict the net worth of this whole transaction. अगर successful firm को acquire करने की cost बहुत ज़्यादा है और एंड में आपको जो नेट रिटर्न मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं है, so obviously acquiring the successful firm will not be fruitful for your firm. On the other side, अगर unsuccessful firm की cost कम है और जो आपकी predicted return है, future predicted return, if you think कि वो ज़्यादा होगी, so obviously you go for the acquisition of unsuccessful firm. So what if the management acquiring firm didn't accept the takeover bid? Then we discuss, suppose अगर acquiring firm की management bid को accept नहीं करती, तो obviously the next option is कि जो acquirer firm की जो वो bypass करते हैं management को of acquiring firm और सीधा
एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीदता है, एंड वंस दे गेट द 51% ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली they are the new controller, or you can say new owner of the business. So hostile takeover in the eye of the beholder. So obviously when you bypass the management, the acquirer firm when bypass the management and they take over the acquiry firm shareholders shares, so obviously management को ये बात बुरी लगती है and they term it as a hostile takeover कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, etc etc. But this is basically in the eye of the beholder. जुल्म उनके साथ हो रहा है, but this is actually what they basically think. In real sense, this is because of their attitude. This is because of the acquiry firms incompetency, the management incompetency कि firm इस हद तक पहुंचा है कि वो दूसरी कंपनी उसको acquire कर रही है. On the other side, acquisition merger being approved by the target firm. जब टारगेट फर्म ने अप्रूवल दे दी, देन देयर इज नो क्वेश्चन शुड बी रेज्ड कि भाई ये जुल्म हो रहा है या जुल्म नहीं हो रहा. देन द टारगेट फर्म मे गो फॉर फ्रेंडली डील. अनदर एस्पेक्ट ऑफ टेक ओवर इज कि टेक ओवर में ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ द एक्वायरी फर्म को कॉम्पनसेट किया जाता है बाय गिविंग देम कैश एंड मेनी अदर इंसेंटिव्स. एंड ऑब्वियसली एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर को प्रीमियम भी मिलता है. सो वंस द मैनेजमेंट, इफ द मैनेजमेंट इज हैप्पी एज वेल एज द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायरी फर्म, सो नो वन कैन क्लेम इट एज एन hostile takeover. Today's lecture outline is basically we will discuss today that how we can stop this process of merger or acquisition in the business environment or in the country, because as we discussed before, merger or acquisition normally is not considered good by the governments, by different governments, because if you have more companies in the market, so obviously you have more competition for the customers. Suppose अगर एक market में 10 companies काम कर रही है, so obviously the customer will get fair price, the customer will get a good quality of products, etc etc, because of the mutual competition between these firms. फॉर्म में कंपटीशन होगा, आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, etc etc etc. On the other side, suppose if these firm they merged with each other, और वो एक फर्म बना लेती है या ये दो फर्म बन जाती हैं by, so now we have 1 or 2 merged firms instead of having 10 companies. Now this is basically they have got a sort of monopoly in the market. उनको मोनोपोली बन जाती है. सो जब मोनोपोली बन जाती है तो ऑब्वियसली नाउ दे कैन सेट देयर ओन प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. वो अपने जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के वो खुद सेट कर सकते हैं, प्लस वो आपको बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर के पास और कोई चॉइस नहीं रहती. इफ यू कैन टेक द एग्जांपल of this trend, for example पाकिस्तान में currently 4, 5, 6 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें जोंग आता है, जिसमें टेलीनॉर, वारिद, यूफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कस्टमर को मुख्तलिफ किस्म के प्राइसेस, चीप प्राइसेस मिलते हैं ऑफ कॉल्स, मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सपोज अगर ये 4 या 5 कंपनियां मिल के एक कंपनी बना लेती है, सो फिर दे में हैव मोनोपोली इन द मार्केट. सो आपको इतनी चीप कॉल्स फिर नहीं मिलेगी और ना ही इतने सॉफ्ट पैकेजेस आपको मिलेंगे. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रेंड ऑफ टेक ओवर और मर्जर इन द मार्केट, normally there are certain steps that is called defenses जो firms भी लेती हैं, as well as जो state की तरफ से laws हैं
वो भी प्रिवेंट करता है मर्जर और एक्विजिशन को. सो वी कॉल इट टेक ओवर डिफेंसेस, कि वो स्टेप्स, वो डिफेंसेस जो टेक ओवर को रोकती है. सो द फर्स्ट वन इज बेसिकली फर्म लेवल प्री एम्प्टिव डिफेंसेस. इसमें हमारे पास सबसे पहले वो दैट इज फर्म लेवल प्री एम्प्टिव डिफेंसेस. फर्म लेवल में हमारे पास प्री एम्प्टिव एंड देन वी हैव द रिएक्शनरी टेक ओवर डिफेंसेस. Then in the preemptive defenses we have the poison pills, okay, how the firm can take such steps के जो merger या जो take over हो रहा है वो रुक सके. So poison pill is basically acquirer firm stock at the deep discount rate, कि acquirer firm की जो shares हैं वो एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होते एट अ वेरी डीप डिस्काउंट एंड द टारगेट फर्म्स डेट इमीडिएटली ड्यू. सो दैट इज कॉल्ड द पॉइजन पिल. वी विल डिस्कस इन डिटेल नाउ. Then we have the golden parachute, that is called payment to the managers. So obviously जब एक एक्वायरर फर्म एक्वायरी फर्म के मैनेजमेंट को हैंडसम पैकेजेस देगी, बिकॉज so obviously वो acquirer firm will think a lot before acquiring that particular company. Then we have the super majority rule, 2/3 shareholders approval, and then the staggered board. के board को आप divide कर लेते हैं. So that's how you can reduce the monopoly of the single board. In the first level defenses, we have first level reactionary target takeover defenses, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ग्रीन मेल आता है. ग्रीन मेल बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेमेंट प्रीमियम टू द मेजर शेयर होल्डर्स. बेसिकली होता यह है कि अगर कंपनी में एक या दो तीन मेजर शेयर होल्डर्स हैं और बाकी छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, तो उस मेजर शेयर होल्डर को होस्टाइल टेक ओवर रोकने के लिए कंपनी अपने बाकी शेयर होल्डर को कहती है कि आप इनके शेयर्स ले लें, बिकॉज अगर किसी और कंपनी ने इन मेजर शेयर होल्डर को एक्सेस कर लिया तो वो इनके साथ मिलके कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द ग्रीन मेल. कन्विंसिंग बेसिकली सॉर्ट ऑफ कन्विंसिंग बाय द मैनेजमेंट to convince the shareholders कि भाई it's not the fair price or it's not the proper time to give bid for the takeover. Then we have state level anti takeover laws. ये तो हो गई फर्म की डिफेंसेस, जो फर्म जो स्टेप्स ले सकता है पहले और बाद में भी. स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वी हैव सर्टेन लॉज, जिसमें हमारे पास फ्रीज आउट लॉज आता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं कि लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने कंपनी को टेक ओवर करना है तो आप इसके बाद इतने टाइम के बाद इसको टेक ओवर कर सकते हैं. इनकी आप जितने भी एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो आप यूज कर सकते हैं. फेयर प्राइस लॉ, अनदर एंटी टेक ओवर लॉज. देन वी हैव पॉइजन पिल endorsement laws, a control share acquisition law, and a constituency statute including a non-shareholders. So inshallah we will discuss all these law one by one. Then assessment of takeover defenses. Now the question is कि takeover defenses कहीं bad governance की तरफ तो नहीं लेके जा रही, because the main aim of the takeover is, as we discussed, कि जब कंपनीज की गवर्नेंस ठीक नहीं होती, दो कंपनीज की, तो वो आपस में मर्ज होके दे कैन मेक अ न्यू फर्म एंड मेक अ न्यू बिजनेस. सिमिलरली अगर एक कंपनी की गवर्नेंस ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करके उसके गवर्नेंस इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज डिफेंसेस और बेसिकली स्टॉपिंग और बेसिकली द मेन कॉज ऑफ क्रिएटिंग द गवर्नेंस इश्यूज. सो वी विल डिस्कस इट टुडे. But the thing is कि we have to see the pros and cons of the takeover defenses, कि कंपनी के लिए क्या सही है. either to
go for the defenses or to allow the acquirer firm to take over their firm. So takeover defenses. Takeover defenses include all actions by managers to resist having their firms acquired. We can place takeover defenses into two categories, a firm level and state level. In firm level, we have preemptive defenses and reactionary defenses. So takeover defenses basically the steps through which the company they stop or they resist by taking their firm to be acquired. कि वो steps जिससे कंपनी अपने आप को बचा सकती है टेक ओवर होने से. हमारे पास दो किस्म के डिफेंसेस हैं जो कंपनीज की तरफ से हैं प्लस स्टेट की तरफ से भी कंपनीज को एक किस्म की प्रोटेक्शन मिलती है. एंड एज वी डिस्कस्ड के टेक ओवर डिफेंसेस इसलिए हम करते हैं कि नॉर्मली द गवर्नमेंट दे वांट टू डिस्करेज द ट्रेंड ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट. अगर सारी कंपनीज ने एक दूसरे के मर्ज करना शुरू कर दिया या बड़ी कंपनीज ने छोटी कंपनी को एक्वायर करना शुरू किया तो ऑब्वियसली मार्केट में यू मे फेस सॉर्ट ऑफ मोनोपोली. सो इस चीज को रोकने के लिए यू कैन यूज योर डिफेंसेस. सो फर्म लेवल प्रीएम्प्टिव टेक ओवर डिफेंसेस जिसमें हमारे पास द फर्स्ट वन इज poison pill. The term poison pill represent any strategy that makes a firm, a target firm, less attractive immediately after it is taken over. Most poison pills are simply favorable rights given to its shareholders. Poison pills means अगर इसके हम उर्दू में तर्जुमा करें तो सिंपली वी कैन से जो जहर की गोली. दैट मीन्स टू मेक लेस अट्रैक्टिव द टारगेट फर्म, टू मेक द टारगेट फर्म लेस अट्रैक्टिव फॉर द और टू द एक्वायरर फर्म. के पॉइजन पिल से एक्वायरर फर्म के लिए एक्वायरी फर्म इतना अट्रैक्टिव नहीं होता. सो वो क्या स्टेप्स हैं कि जिससे एक्वायरर फर्म फिर एक्वायरी फर्म में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता. फर्स्ट वन इज अ टारगेट फर्म शेयर होल्डर्स राइट टू बाय द एक्वायरर्स स्टॉक्स एट द डीप डिस्काउंट इफ द फर्म इज एक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, टेक ओवर कर रही है. सो वो कंपनी कहेगी एक्वायरी फर्म, टारगेट फर्म कि आप हमारे शेयर होल्डर्स को जो आपके शेयर्स हैं, जो एक्वायरर फर्म के शेयर्स हैं, वो काफी डिस्काउंट पे आप हमें देंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ द एक्वायरर फर्म इज कैन हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. अगर एक्वायरर फर्म इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, इस चीज को हैंडल कर सकता है कि एक्वायरी फर्म के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने शेयर्स डिस्काउंट पे देंगे. सो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर द बिड एंड दे विल गो फॉर द टेक ओवर. लेकिन अगर एक्वायरर फर्म इस किस्म की प्रपोजल्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो अपने शेयर्स को एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली दे विल गेट बैक, वो वापस हो जाएंगे और कंपनी को टेक ओवर नहीं करेंगे. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्टेप दैट द एक्वायरी फर्म कैन टेक. ऑफ कोर्स दीज राइट्स मेक दोज फर्म मच लेस अट्रैक्टिव टू टेक ओवर फ्रॉम द एक्वायर्ड स्टैंड पॉइंट. ऑब्वियसली इससे जो एक्वायरी फर्म है वो एक्वायरर फर्म के लिए लेस अट्रैक्टिव होगा. Another type of poison pills could involve a firm's debt becoming immediately due once it is taken over, or an immediate deep discount selling of fixed assets once it is taken over.
दूसरा पॉइजन पिल ये है कि सपोज एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही है, तो छोटी कंपनी एक्वायरर फर्म को कह सकती है कि हमारे जो डेट्स हैं कंपनी के, आपको उसे इमीडिएटली पे करना होगा, इवन टू द जो क्रेडिटर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, तो आपने उनको वो पेमेंट करनी होगी। अगर वो अमाउंट कम है और वो अमाउंट एक्वायरर फर्म हैंडल कर सकता है, सो ऑब्वियसली दे विल से ओके वी विल पे योर डेट्स, और फिर वो कंपनी को वो टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डेट्स बहुत ज्यादा हैं एक्वायरी फर्म के, सो एक्वायरर फर्म ऑब्वियसली they will feel hesitation to take over the acquiring firm. So these are basically the poison pill strategies made by the acquiring firm. So these are some of the strategies through which a target firm can prevent its firm to be acquired. So ये वो strategies हैं जिससे acquiring firm अपने आप को less attractive कर सकता है। First कि आपने एक्वायरी फर्म या टारगेट फर्म के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स एक्वायरर फर्म के शेयर्स को डीप डिस्काउंट पे देना है। नंबर 2 के आपने जो एक्वायरी फर्म के जो डेट्स हैं आपने इमीडिएटली उसको पे करना है। सो अगर एक्वायरर फर्म इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर दिस पॉइजन पिल्स एंड विल टेक ओवर द फर्म। लेकिन अगर एक्वायरर फर्म के लिए ये चीज हैंडल करना मुश्किल है, सो ऑब्वियसली दे विल गेट बैक एंड विल नॉट बी एनी मोर इंटरेस्टेड टू टेक ओवर दैट फर्म। गोल्डन पैराशूट, another firm level preemptive takeover defense is parachute, golden parachute. A golden parachute is an automatic payment made to managers if their firms get taken over. Golden parachute simply means कि जो एक्वायरर फर्म है वो टारगेट फर्म की मैनेजमेंट को कॉम्पनसेट करती है, उनको कुछ ना कुछ पैसे देती है in the shape of golden handshake and many other incentives. So अगर कंपनी इस चीज को हैंडल कर सकती है and the acquirer firm is suppose in a very favorable conditions to pay compensation to the target firm management, तो obviously वो एक्सेप्ट कर लेगी और फर्म को टेक ओवर कर लेगी। लेकिन सपोज अगर मैनेजमेंट को जो पेमेंट करनी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो ऑब्वियसली दिस विल स्टॉप द एक्वायरर फर्म टू टेक ओवर द टारगेट फर्म, बिकॉज द एक्वायरर ultimately bears the cost of these parachutes. Their existence make those firms less attractive. As we said कि in one way or the other आपने मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है फॉर एज फॉर एज मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट टू कंपनसेट देम। सो अगर आप उसको कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट एंड टेक ओवर दैट फर्म। गोल्डन पैराशूट कैन आल्सो बी व्यूड एज वन ऑफ द पॉइजन पिल। हम गोल्डन पैराशूट को भी पॉइजन पिल कह सकते हैं इन अनदर वे, बिकॉज कि गोल्डन पैराशूट भी एक किस्म की पॉइजन पिल है, किस्म की जहर की गोली है फॉर द एक्वायरर फर्म टू गेट और टू टेक। सुपर मेजॉरिटी रूल्स। सुपर मेजॉरिटी रूल्स where 2/3 or even 90% of the shareholders have to approve a handover in control. सुपर मेजोरिटी रूल सिंपली कि 2/3 जो मेजोरिटी है या 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स वो अप्रूवल देते थे कि नाउ वी वांट आवर फर्म टू बी टेक ओवर। हम ये चाहते हैं कि हमारे फर्म को दूसरा फर्म टेक ओवर कर लें, तो ऑब्वियसली जब 2/3 की मेजोरिटी मिल जाती है या 90% ऑफ शेयर होल्डर्स वो अप्रूवल दे देते हैं एक्वायरर फर्म को, तो ऑब्वियसली एक्वायरर फर्म
उस कंपनी को आसानी से टेक ओवर कर सकती है। स्टैगर्ड बोर्ड। A staggered board consists of a board of directors whose members are grouped into classes, for example class 1, class 2, class 3, etc. Each class represents a certain percentage of the total number of board positions. For example, a class is commonly comprised of 1/3 of total board members. During each election terms, only one class is open to election, thereby staggering the board dictatorship. स्टैगर्ड बोर्ड क्या है? स्टैगर्ड बोर्ड बेसिकली कि आप बोर्ड को जो मेंबर्स हैं उनको आप डिफरेंट टेन्योर्स में आप इलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज द कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल हमने कंपनी में 18 डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रखनी है। सो 6 मेंबर्स एक क्वार्टर में लेंगे, फिर 6 मेंबर्स दूसरे क्वार्टर में लेंगे, एंड द लास्ट 6 मेंबर्स वो थर्ड क्वार्टर में लेंगे। उससे ये होता है कि बेसिकली इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। अगर हम एक बोर्ड ये नहीं करता और सारे डायरेक्टर्स एक ही टाइम पे वो इलेक्ट हो जाते हैं, सो उससे ये होगा कि एक किस्म का उनमें एक नेचुरल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, एंड दे कैन मेक अ सिंगल डिसीजन वंस, मींस कि सब डायरेक्टर्स एक साथ इलेक्ट हो गए, सो उनके पास जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। सो नाउ दे हैव गॉट अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इन द बोर्ड कि जो डायरेक्टर्स मिलके चाहेंगे वो कर सकते हैं। सो इस चीज को लाइक इफ यू कैन सी, पाकिस्तान में भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिसमें जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। अगर एक बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका भाई या उसका बेटा उसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। अब लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ many organizations in Pakistan, including like UN. If you are working in any field in, तो आपका भाई या आपका बेटा उस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकता। एंड द मेन आर्गुमेंट इज कि इन अगर दो ब्लड रिलेटिव किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे तो उससे उनकी जो एक किस्म का जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है। सो सेम इज द केस विद द स्टैगर्ड बोर्ड कि अगर आपने बोर्ड में सारे मेंबर्स एक ही साथ इलेक्ट कर लिए या सेलेक्ट कर लिए, सो कुछ अरसे के बाद उनका जो रिलेशनशिप है दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द बोर्ड, क्योंकि 18 अगर मेंबर जो चाहेंगे वो डिसाइड या वो डिसीजन कर वो हो सकता है। सो टू एलिमिनेट दैट सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप और मोनोपोली इन द बोर्ड, करते क्या हैं कि बोर्ड डिफरेंट टेन्योर्स में मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। जिस तरह हमने अभी एग्जांपल दिए कि एक क्वार्टर में आप 6 मेंबर लेते हो, फिर दूसरे क्वार्टर में 6, फिर तीसरे क्वार्टर में 6। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट योर बोर्ड ऑफ 18 मेंबर्स। उससे ये होगा कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट नहीं होगा, वो इतना डेवलप नहीं होगा। अगर कुछ अरसे के बाद उनमें अगर वो रिलेशनशिप डेवलप होता भी है तो जो फर्स्ट क्वार्टर के जो डायरेक्टर्स हैं जब वो 1 साल के बाद रिटायर होंगे तो जब नए डायरेक्टर्स आएंगे तो ऑब्वियसली उनका वो रिलेशनशिप खत्म हो गया, उनकी वो जो डिक्टेटरशिप है बोर्ड डायरेक्टर्स की वो खत्म हो गई। सिमिलरली जब दूसरा क्वार्टर आएगा, जब उनका 1 साल एक्सपायर होगा, जब नए डायरेक्टर्स आएंगे तो ऑब्वियसली जो उनकी जो डिक्टेटरशिप है डायरेक्टर्स की, जो मोनोपोली है डायरेक्टर्स की, वो खत्म हो जाती है। सो स्टैगर्ड बोर्ड में जब आप मुख्तलिफ टेन्योर में डायरेक्टर्स को आप निकलेंगे या डायरेक्टर्स को आप हायर करेंगे या इलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो उनकी जो डिक्टेटरशिप है
जो मोनोपोली है इन द बोर्ड वो ख़त्म हो जाती है. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ स्टैगर्ड बोर्ड कि वो आपकी जो टेक ओवर है किसी भी कंपनी की तरफ वो उसको रोक सकती है. Firm level reactionary takeover defenses. In firm level we have reactionary takeover defenses, जिसमें the first one is called green mail. To prevent hostile takeover, the firm or the target firm force the shareholders to purchase stocks or shares from the major shareholders at premium. Green mail ये है कि सपोज एक कंपनी में छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं लेकिन कुछ बड़े शेयर होल्डर्स भी हैं. सो हैविंग मेजर शेयर होल्डर्स इन द बोर्ड और इन द कंपनी वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं कंपनी के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी में 50 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 1% शेयर्स हैं. सो दैट कैन मेक 50% ऑफ द शेयर्स. 50 shareholders make the 50% of the shares of the company. On the other sides, 3 ऐसे या 2 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 20-25% शेयर्स हैं. सो एक साइड पे जो 50% शेयर्स है वो 2 शेयर होल्डर के पास है, दूसरे साइड पे जो 50% शेयर्स हैं वो 50 शेयर होल्डर्स के पास हैं. सो अगर कोई बड़ी कंपनी वो उन बड़े शेयर होल्डर्स को एक्सेस करती है और उनसे वो शेयर्स ले लेती हैं, इवन देन अगर वो 50 शेयर होल्डर्स छोटे वो अपोज भी करें तो वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देव ऑलरेडी एक्वायर्ड फर्म ने उनसे 50-51% शेयर्स ले लिए हैं. सो इस किस्म की चीज़ को रोकने के लिए कंपनी अपने छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इंसिस्ट करती है या फोर्स करती है कि आप जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स प्रीमियम पे लें, ज़्यादा पैसे देके लें, ताकि उनकी एक किस्म की जो यू कैन अगेन यूज द वर्ड्स ऑफ डिक्टेटरशिप और मोनोपोली वो ख़त्म हो जाए. तो फ़ायदा कंपनी को भी होगा एज वेल एज जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, बिकॉज उनसे शेयर्स जो मार्केट में प्राइस है उससे ज़्यादा पे वो दे रहे हैं अदर शेयर होल्डर्स को. सो ग्रीन मेल इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट बेसिकली द कंपनीज टू बी टेक ओवर के मेजर शेयर होल्डर्स से आप प्रीमियम पे शेयर्स लें ताकि उनकी मोनोपोली और जो डिक्टेटरशिप वो ख़त्म हो जाए. Another firm level reactionary takeover defense is convincing. It's a sort of defense by the management to convince the company's shareholders that the bid price is very low. दूसरा reactionary takeover ये है कि मैनेजमेंट अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो अगर कन्विंस कर सकें कि आप जो प्राइस हमें मिल रही है, जो बिड कंपनी के पास आई है वो बहुत कम है मार्केट से, बिकॉज हमारे मार्केट में काफ़ी वैल्यू है फॉर एग्जांपल, या हमारी कंपनी की वर्थ ज़्यादा है. सो जो बिड हमारे पास आई है वो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज़ नॉट अ फेयर प्राइस. सो अगर शेयर होल्डर्स कन्विंस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली दे विल एग्री विद द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी एंड दे विल नॉट गो फॉर द टेक ओवर. लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं होते तो obviously they will allow the acquired firm to take over their company. Now we have state level anti takeover laws. कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फर्म लेवल पे फर्म क्या कर सकता है टू प्रिवेंट द टेक ओवर ऑफ कंपनीज. अब स्टेट लॉ जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है टू प्रिवेंट द टेक ओवर्स इन द मार्केट, कि मार्केट में टेक ओवर ना हो एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ फेयर कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स एंड टू रिड्यूस द मोनोपोली इन द मार्केट. द फर्स्ट वन वी हैव इज द फ्रीज आउट लॉज. It stipulate a length of time that a bidder
that gains control has to wait to merge the target with its own assets. फ्रीज आउट लॉ ये है कि लॉ में ये बात हो जाती है, या लॉ ये कहता है कि अगर एक फर्म दूसरे फर्म को टेक ओवर कर रहा है तो एक्वायरर फर्म टारगेट फर्म के एसेट्स या कोई भी चीज इतने अरसे के बाद यूज कर सकती है. वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो 3 साल भी हो सकते हैं, वो 5 साल भी हो सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, if the acquirer firm can bear this cost, अगर acquirer firm इस cost को bear कर सकती है तो वो agree करेगी, wait करेगी, और फिर जब उसका टाइम मेच्योर हो जाएगा या पूरा हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो एक्वायरी फर्म को उसकी एसेट्स या जो कुछ भी है वो यूज कर सकते हैं. ऑन द अदर साइड, अगर एक्वायरर फर्म इतना वेट नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाइल एक्वायरिंग द टारगेट फर्म, तो ऑब्वियसली इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना वेट वो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली दे विल गेट बैक एंड दे विल स्टॉप द टेक ओवर प्रोसेस. सो फ्रीज आउट लॉ में बेसिकली लॉ एक्वायरी फर्म को एक किस्म की प्रोटेक्शन देती है, किस्म का उसको सेफ गार्ड करती है कि अगर कंपनी ने बहुत अच्छी बिड भी दे दी, एक्वायरर फर्म ने, टारगेट फर्म वो भी चाहती है कि एक्वायर हो, लेकिन कंपनी इस ट्रेंड को रोकने के लिए कुछ टाइम देता है बाय लॉ कि आप इतने टेन्योर में जो एक्वायरी फर्म के जो एसेट्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते. अगर एक्वायरर फर्म कैन बेयर द कॉस्ट, ऑब्वियसली दे विल वेट. अगर वो इस कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली दे विल गेट बैक एंड स्टॉप दिस प्रोसेस. Another state level anti takeover laws, we have fair price laws. Fair price laws make sure that shareholders who sell their shares during a later stage of an acquisition get the same price as any other shareholder that sold their shares to the acquirer earlier. जब एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर करता है, सो ऑब्वियसली एक ऑप्शन ये भी है कि वो ट्राई टू गेट द 51% ऑफ शेयर्स ऑफ द टारगेट फर्म. तो जो शेयर होल्डर्स अपने, इफ दे आर रेडी टू सेल देयर शेयर्स टू द टारगेट फर्म, टू द एक्वायरर फर्म, तो ऑब्वियसली दे विल बी लुकिंग फॉर सम प्रीमियम, और एक्वायरर फर्म उनको प्रीमियम दे भी देती है बिकॉज एक्वायरर फर्म इंटेंशंस आर कि वो कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, कंपनी का कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है. सो जो 49% शेयर होल्डर्स बाकी रह जाते हैं, सो उसको लॉ ये प्रोटेक्शन देती है कि अगर उन्होंने बाद में फॉर एग्जांपल अपने शेयर्स बेचने हैं एक्वायरर फर्म पे, तो एक्वायरर फर्म उनको वही प्राइस देगा जो प्राइस उन्होंने इनिशियल स्टेज पे एक्वायरी फर्म के जो शेयर होल्डर्स थे उनको दी थी. बिकॉज सपोज एक फर्म है, वो दूसरे फर्म को एक्वायर करना चाहते हैं, तो 51% ऑफ शेयर्स विद द प्रीमियम वो परचेज कर लेते हैं. अब अगर लॉ की तरफ से प्रोटेक्शन ना हो तो जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं तो उनसे वो फिर कम प्राइस में फ्यूचर में शेयर्स लेंगे अगर वो बेचना चाहे तो. दैट इज सॉर्ट ऑफ डिस्करेजिंग बिहेवियर टुवर्ड द एक्वायरीज फर्म शेयर होल्डर्स. सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए लॉ इन्फोर्स करती है एक्वायरर फर्म को कि आपने जब कंपनी को टेक ओवर कर रहे थे तो आपने जो फेयर प्राइस लगाई थी शेयर होल्डर की एट द प्रीमियम एट द इनिशियल स्टेज, तो आप वही प्राइस जो बाद में अगर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप उनको वही प्राइस देंगे, वही प्रीमियम प्राइस देंगे.
So that is a sort of protection of the acquiring firm's remaining shareholders. So अगर कंपनी इस चीज को इस कॉस्ट को बेयर कर सकती है, तो ऑब्वियसली द एक्वायरर फर्म विल गो फॉर दैट प्रोसेस. अगर वो इसको बेयर नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली एक्वायरर फर्म विल गेट बैक एंड विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट द टेक ओवर प्रोसेस. Poison pill endorsement laws. This law protects the firm's right to adopt poison pills. Poison pill endorsement law ये है कि ये लॉ प्रोटेक्ट करता है फर्म को कि वो कोई भी जो पॉइजन पिल हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं. सो अगर उनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी फर्म अडॉप्ट कर लेती हैं, तो उसको लॉ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि लॉ की तरफ से उनकी प्रोटेक्शन है दैट दे कैन अडॉप्ट एनी पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी टू स्टॉप द टेक ओवर प्रोसेस. देन वी हैव कंट्रोल शेयर acquisition law. A control share acquisition law requires shareholders approval before a bidder can vote his shares. Shareholders acquisition law ये है कि अगर अगेन वही बात कि अगर शेयर होल्डर ने अप्रूवल टेक ओवर के खिलाफ दी, तो इस डिसीजन को लॉ ने भी प्रोटेक्ट किया हुआ है. That means that the law can protect, or you can say the law can permit or can save the shareholders to make their decision, either to agree with the acquirer firm, or you can make your decision against their bid. So acquirer shareholder के पास ये right law ने भी दी है कि वो अपना decision दे सके, either to accept or to reject the bid. A constituency statute. A constituency statute allows managers to include non-shareholders such as employees and creditors interest in defending against the takeovers. दूसरा जो लॉ में ये है कि जब टेक ओवर हो रही हो, जब ये सारा प्रोसेस होता है, सो जो नॉन शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं, आपके क्रेडिटर्स भी आते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लें. सपोज अगर एम्प्लॉयज और क्रेडिटर्स अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हों, तो हो सकता है कि बाय लॉ वो टेक ओवर प्रोसेस खत्म हो जाए. लेकिन अगर एम्प्लॉयज भी खुश हैं for this process because कंपनी ठीक नहीं है and they want some compensation, ताकि वो in terms of cash, ताकि वो किसी और जगह जाके या तो अपना बिजनेस शुरू करे, किसी और जगह पे जाके जॉब करें. सेम इज द केस विद द क्रेडिटर्स. सो अगर क्रेडिटर्स भी खुश होते हैं कि भाई एक्वायर्ड फर्म उनको पेमेंट कर रही है अबाउट ऑल देयर लोन्स, सो ऑब्वियसली इनकी जो ओपिनियन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है in this whole process. So this is called a constituency statute. Now assessment of takeover defenses. Now we will assess the whole takeover process. Are takeover defenses bad for the governance system? As we have discussed कि takeover basically defenses जो होते हैं वो takeover को रोकने के लिए होते हैं. Normally from the firm side as well as from the government side. Because takeover से या merger से you may have a sort of monopoly in the market. So इस चीज़ को रोकने के लिए takeover defenses use होते हैं. But the problem again कि जो takeover होता क्यों है या merger होता क्यों है, because कि companies में कुछ governance issues हैं, कुछ problems हैं. So आया अगर आप डिफेंसेस यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो गवर्नेंस प्रॉब्लम इश्यूज तो वहीं पे रह गए, तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है हाउ टू सॉल्व द गवर्नेंस प्रॉब्लम इन द कंपनी. सो टेक ओवर डिफेंसेस एटलीस्ट कंट्रीब्यूटेड
to the end of disciplinary takeover. टेक ओवर डिफेंसेस से क्या होता है, आपका जो डिसिप्लिनरी टेक ओवर्स होती है वो खत्म हो जाती है. डिसिप्लिनरी टेक ओवर मीन्स के एक कंपनी ठीक नहीं जा रही, उसकी शेयर प्राइस ठीक नहीं है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है विद द बोर्ड और विद द शेयर होल्डर्स. सो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेगी. सो ऑब्वियसली जो उससे क्या होगा, जो बैड मैनेजमेंट है वो फायर होगी और जो कंपनी डूब रही है वो बच जाएगी. लेकिन जब ऊपर से टेक ओवर डिफेंसेस आता है तो वो डिसिप्लिनरी टेक ओवर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. इफ टेक ओवर डिफेंसेस प्रिवेंट disciplinary takeover, then their existence cause us to left with one less governance mechanism. Means कि अगर सोसाइटी में अगर गवर्नमेंट स्ट्रांगली टेक ओवर डिफेंसेस अडॉप्ट करेगी तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि हमारे पास जो मार्केट में वी कैन फेस अ वेरी sort of strong governance problems और governance mechanism. काफी issues create हो सकते हैं, companies डूब भी सकती हैं. So टेक ओवर से या मर्जर से the companies के डूबने का खतरा वो कम हो जाता है, लेकिन डिफेंसेस की वजह से वो कंपनीज डूब भी सकती हैं. In this sense, takeover defenses are bad for the governance system. So we can say in a short कि ये defenses basically that is bad for the governance system. So adopting takeover defenses can badly affect the target firm share price. Another thing that has been noticed by the researchers कि जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उससे ये फायदा भी हो सकता है कि उस छोटी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाए. लेकिन जब ऊपर से वो डिफेंसेस अडॉप्ट करते हैं, वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं और इस प्रोसेस को रोक देते हैं टेक ओवर की, तो मार्केट में जो एक्वायरी फर्म है, जो टारगेट फर्म है, उसकी रेपुटेशन और भी खराब हो जाती है. एंड एनालिस्ट ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी शेयर प्राइस और भी गिर जाती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि कंपनी वैसे भी डूब रही थी, इसके पास एक चांस था टू गेट बैक, ताकि उसके पास एक किस्म का एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो बड़ी कंपनी के साथ टेक ओवर होकर वो अपनी पोजीशन को स्टेबल कर सकता था. लेकिन उन्होंने चूंकि डिफेंसेस अप्लाई किए जिसको लॉ भी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी शेयर प्राइस कम होगी, बिकॉज इन्वेस्टर्स उस कंपनी में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट. But this is not to say that we staunchly advocate eliminating anti-takeover mechanism. लेकिन we cannot guarantee या we cannot say purely कि हमें बिल्कुल ही टेक ओवर डिफेंसेस अडॉप्ट नहीं करने चाहिए. We should continue to evaluate the pros and cons of anti-takeover defenses in the light of free evaluation of corporate governance that is taking place today. Means कि जब कंपनी दूसरी कंपनी के टेक ओवर करती है तो ऑब्वियसली जो एक्वायरी फर्म है, जो टारगेट फर्म है, उसको टेक ओवर की और जो डिफेंसेस जो उनके पास एक किस्म की एक अपॉर्चुनिटी है, उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनके फायदे नुकसान को जज करना चाहिए. अगर टेक ओवर से कंपनी को फायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको डिफेंसेस जो स्ट्रेटजीज है वो अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, एंड दे सिंपली लेट देयर कंपनी टू बी एक्वायर्ड. ऑन द अदर साइड, अगर टेक ओवर से कंपनी को नुकसान हो सकता है एक्वायरी फर्म को, जिसमें हो सकता है कि कंपनी की मैनेजमेंट ठीक हो, सब कुछ ठीक चलो, लेकिन बिड बहुत बड़ी आई हो, तो उस केस में दे कैन यूज देयर डिफेंस एंड दे कैन स्टॉप द टेक ओवर प्रोसेस. सो टेक ओवर डिफेंसेस और टेक ओवर प्रोसेस को इनके प्रोज एंड कॉन्स
को देखना चाहिए बाय द टारगेट फर्म. Some anti-takeover devices appear only to benefit managers. As we have said कि अगर टेक ओवर जो डिफेंसेस हैं वो अगर मैनेजर्स को बेनिफिट कर रहे हैं, अगर सिर्फ उनके पर्सनल इंटरेस्ट को बेनिफिट कर रहे हैं, तो फिर कंपनी को ये डिफेंसेस अडॉप्ट नहीं करने चाहिए. On the other hand, many firms with takeover defenses do eventually agree to be acquired. When they do, the acquisition price tend to be much higher than the original offer. Another aspect of adopting the takeover defenses is कि basically company takeover defenses इसलिए भी adopt करती है कि they simply want to increase their company price. एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो ये दे कैन से दैट वी आर नॉट हैप्पी, यू शुड गिव सम मोर मनी टू आवर मैनेजर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो उससे ये होता है कि बेसिकली टारगेट फर्म अपनी प्राइस बढ़ाना चाह रहा है एंड दैट्स ऑल. Therefore, fighting against the merger for a while may cause the bid price to increase, thereby increasing wealth to the target firm shareholders. So इस सारा जो टेक ओवर डिफेंसेस कंपनी अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकती है बाय आर्ग्यूइंग विद द एक्वायरर फर्म एंड बाय गिविंग द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ देयर फर्म. This is the end of our today's lecture. Let's have a quick review what we studied in this topic, that is takeover, corporate takeover, a governance mechanism. First, we discussed or defined what is meant by a takeover and what are merger or acquisition. Merger basically when two companies combine together. Acquisition basically when one company buy another company. Then we discussed the importance of discussing merger and acquisition in corporate governance. Okay, why we are discussing merger and acquisition in the corporate governance? Because simply कि जब कंपनी में गवर्नेंस इश्यूज होंगे, जब एक कंपनी की जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर, और कंपनी ठीक काम नहीं करे, तो ऑब्वियसली दूसरी कंपनी को उसको टेक ओवर करना चाहिए ताकि उसकी सर्वाइवल हो और वो बैंकरप्ट ना हो. देन वी डिस्कस द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड द जनरल प्रोसेस ऑफ मर्जर. जो दोनों में फर्क ये है कि मर्जर में कंपनीज का नाम मिक्स हो जाता है, लाइक वी टुक द एग्जांपल ऑफ सोनी एरिक्सन, और एक्विजिशन में बेसिकली ये होता है कि जो एक्वायरर फर्म है उसका नाम रह जाता है और जो टारगेट फर्म है उसका नाम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक जोंग एंड पाकटेल. जोंग ने जब पाकटेल को एक्वायर कर लिया तो पाकटेल का नाम बीच में है ही नहीं, ओनली यू कैन सी द नेम ऑफ जोंग इन द मार्केट. Then we discuss the characteristics of merger and acquisition. के merger acquisition की क्या क्या characteristics है. The first thing is the type, कि you should know कि आपकी merger किस टाइप की है. It's vertical or horizontal. Vertical or merger means कि merging with a different but supportive company. Horizontal merging with the और टेक ओवरिंग, या अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, दैट मीन्स कि आप अपने ही जो सेम बिजनेस है उस कंपनी को टेक ओवर कर. फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी को टेक ओवर करता है या मर्ज होता है, सो दैट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल टेक ओवर. वर्टिकल में डिफरेंट बट सपोर्टिव इंडस्ट्री, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक टायर इंडस्ट्री को टेक ओवर करता है या मर्ज होता है, सो बेसिकली दैट इज अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल टेक ओवर या मर्जर. द वैल्यूएशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व, इसमें हमने डिस्कस किया था कि दोनों फर्म की एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1 कि आप मार्केट में देखें कि एक्वायरर फर्म की क्या वैल्यूएशन क्या वैल्यू है और एक्वायरी फर्म की क्या वैल्यू है. अगर उसकी आप एक फर्म को एक्वायर कर रहे हैं, सो एक्वायरी फर्म की के लेवल के जो बाकी फर्म्स हैं, तो यू कैन मेक अ सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क फॉर योर एवेल्युएशन. और ऑब्वियसली दोनों फर्म्स ये चाहती हैं कि उनकी प्राइस
ज़्यादा हो। एक्वायरर फर्म ये चाहता है कि एक्वायरी फर्म की प्राइस कम लगे, और एक्वायरी फर्म या टारगेट फर्म ये चाहती है कि उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा लगे। फिर दूसरी पेमेंट दैट इज ऑल नॉर्मली थ्रू कैश और थ्रू द स्टॉक्स टू द टारगेट फर्म। देन द न्यू स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट न्यू स्ट्रक्चर के कॉर्पोरेट जो नई फर्म बन रही है आइदर थ्रू मर्जर और एक्विजिशन, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड ऑब्वियसली मर्जर में नॉर्मली यू कैन सी कि दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट मिल के काम करती है। ऑन द अदर साइड एक्विजिशन में जो टारगेट फर्म की मैनेजमेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फायर हो जाती है। द लीगल इशू इज कि अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि मर्जर या एक्विजिशन से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो रही है एंड दे आर डिस्टर्बिंग द फेयर कंपटीशन, सो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और मर्जर और एक्विजिशन प्रोसेस को स्टॉप कर सकती है। Then we discuss some brief overview of merger and acquisition. Then we discuss some reasons के क्यों होते हैं, जिसमें we discuss strategic reasons to reduce cost to get new business. Synergistic reason means combined effort. Diversification means to reduce the risk by making investment in different locations. Then we discuss are corporate takeovers good for shareholders, that is acquirer firm shareholders and acquiring firm shareholders we discussed in detail. And obviously target firm की share price बढ़ती because they are now in a very safe hand now. Is it appropriate to acquire successful or unsuccessful firm? We have discussed it in detail कि it's not always good for the acquirer firm to acquire successful firm. अगर सक्सेसफुल फर्म की कॉस्ट ज़्यादा है और फ्यूचर में उनकी रिटर्न इतनी नहीं है तो ऑब्वियसली द एक्वायरर फर्म विल नॉट गो फॉर द सक्सेसफुल फर्म एक्विजिशन। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल फर्म की कॉस्ट इतनी नहीं है एंड दे कैन सी के फ्यूचर में उनसे रिटर्न जो मिलेगा वो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर द अनसक्सेसफुल फर्म एक्विजिशन। देन वी डिस्कस व्हाट इफ द मैनेजमेंट एक्वायरी फर्म डिडंट एक्सेप्ट द टेक ओवर बिड। ऑब्वियसली एक्वायरर फर्म एक्वायरी फर्म के मैनेजमेंट को बाईपास करके सीधा एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर से शेयर्स ले लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम 51%, तो ऑब्वियसली दे कैन बिकम द न्यू ओनर। होस्टाइल टेक ओवर इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर कि इस प्रोसेस को बाईपासिंग द मैनेजमेंट ऑफ एक्वायरी फर्म और टारगेट फर्म इसको वो होस्टाइल कंसिडर करते हैं। बट एक्विजिशन मर्जर बीइंग अप्रूव्ड बाय द टारगेट फर्म, अगर एक्विजिशन को या मर्जर को टारगेट फर्म ने अप्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली इसमें फिर किस किस्म का होस्टाइल टेक ओवर का क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता। देन द टारगेट फर्म मे गो फॉर द फ्रेंडली डील, पर्क्स फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रीमियम फॉर द शेयर होल्डर्स। देन वी डिस्कस टेक ओवर डिफेंसेस कि गवर्नमेंट या फर्म्स क्या स्टेप्स ले सकती है टू स्टॉप द टेक ओवर प्रोसेस इन द मार्केट। फर्म लेवल पे वी हैव द पॉइजन पिल कि एक्वायरर फर्म कैन स्टॉप एट द डीप डिस्काउंट रेट and target firms debt immediately due कि acquirer firm अपने shares प्रेजेंट करेगा टू द एक्वायरी फर्म्स शेयर होल्डर कि उसको डीप डिस्काउंट पे लें। अगर फर्म ये कर सकती है सो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर द टेक ओवर। अगर फर्म ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इफ द एक्वायरर फर्म कैन नॉट बियर दिस सॉर्ट ऑफ कॉस्ट सो ऑब्वियसली वो उस प्रोसेस को रोक देगी। Then we've golden parachute payment to managers, super majority rule, 2/3 shareholders approval and staggered board. Staggered board में basically you divide the number of directors in the board. उससे होगा उनका जो एक किस्म का फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा वो क्रिएट नहीं होगा बिकॉज टेन्योर डिफरेंट होगा। अगर वो एक किस्म का बॉन्ड बनता भी है तो आधे उसमें निकल जाएंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टॉप द टेक ओवर प्रोसेस। फर्म लेवल रिएक्शनरी टेक ओवर डिफेंस मीन ग्रीन मेल, जिसमें एक्वायरी फर्म या फर्म अपने जो छोटे शेयर होल्डर्स उनको कहता है, फोर्स करता है कि आप जो मेजर शेयर होल्डर्स है कंपनी में उनके शेयर्स प्रीमियम पे लें ताकि उनके पास जो एक किस्म की मोनोपोली है टू डू एनीथिंग विद द फर्म वो ना हो। कन्विंसिंग बेसिकली द मैनेजमेंट, इफ द मैनेजमेंट कैन कन्विंस द शेयर होल्डर्स के प्राइस हमें हमारी सही नहीं लगी तो ऑब्वियसली टेक ओवर रुक सकता है। स्टेट लेवल एंटी टेक ओवर लॉज में हमारे पास फ्रीज आउट लॉज हैं
उसमें ये है कि कंपनीज बाय लॉ एक्वायरर फर्म, उनको ये लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप टेक ओवर तो कर रहे हैं लेकिन आप कंपनी एक्वायरी फर्म को 2, 3, 4 साल तक उसको यूज नहीं कर सकते। देन फेयर प्राइस लॉ, ये है कि लॉ ये सेफ गार्ड कर रहा है एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर को कि वो जो बाद में शेयर होल्डर हैं उनको भी वही प्रीमियम पे पेमेंट मिलेगी ऑफ देयर शेयर्स कि जो जिनको इनिशियल स्टेजेस पे टेक ओवर प्रोसेस में मिल रही है। देन पॉइजन पिल एंडोर्समेंट लॉ, वी डिस्कस इट कि ये लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फर्म को कि आप कोई भी पॉइजन पिल कोई भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शेयर एक्विजिशन लॉ, देन कॉन्स्टिट्यूंसी स्टैट्यूट, देन वी डिस्कस द असेसमेंट ऑफ टेक ओवर डिफेंसेस कि टेक ओवर हम किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज टू रिड्यूस द गवर्नेंस प्रॉब्लम इन द कंपनीज, लेकिन डिफेंसेस इसी टेक ओवर को रोक रही है। सो उससे होता ये कि मार्केट में एक किस्म की एक एनार्की प्रोड्यूस हो जाती है कि गवर्नेंस इश्यूज वही रह जाते हैं बिकॉज द फर्म कैन नॉट टेक ओवर अनदर फर्म बिकॉज ऑफ द टेक ओवर डिफेंसेस। लेकिन फिर कंपनीज को दे शुड सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक ओवर डिफेंसेस कि अगर एक कंपनी वाकई ये समझ सकती है कि टेक ओवर उनके लिए अच्छा है, सो दे शुड लेट द एक्वायरर फर्म टू टेक ओवर देयर फर्म। लेकिन अगर वो देखती है कि ये प्रोसेस उनके लिए हार्मफुल है, सो देन दे कैन यूज देयर टेक ओवर डिफेंसेस। एंड द बॉटम लाइन इज बेसिकली कंपनी कैन यूज दीज डिफेंसेस जस्ट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ देयर मनी, ताकि उनको ज्यादा पैसे मिले, उनको ज्यादा इंसेंटिव मिले। That's the end of our today's lecture. Allah Hafiz.